ایراوتی، خالد دور۔ لاہور شہر میں کرشنا مندر صدیوں پرانا ہے۔ نہ جانے کتنی بار تاراج ہوا، کتنی بار منہدم ہوا، لیکن ہر بار اس کی بنیادوں پر پھر سے دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ دیواروں پر پھر سے کلش نمودار ہو گیا۔ ہر بار اس مندر کی تاریخ بدلتی رہی، لیکن اس کی بنیادیں اپنی قدیم تاریخ کے ساتھ نہ تاراج ہو پائیں نہ منہدم۔ کبھی یہ مندر دریائے ایراوتی کے کنارے پر تھا اور دریا کی موجیں اس کی سیڑھیوں سے ٹکرا کر گزرتی تھیں۔ پھر وقت کی طرح دریا نے بھی رخ بدلا اور مندر کی سیڑھیوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب قدیم دریا کے صرف آثار ہی باقی ہیں۔ 2 دہائیاں پہلے لاہور کے قلعے کے قریب سے گزرنے والے دریا کو بڈھا راوی کہا جاتا تھا، اور اب اس بڈھے راوی کو بھی گھیر کر ایک بڑے سے تالاب کی قبر میں سلا دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید علی حجویری جب دریائے ایراوتی عبور کر کے لاہور کے نواح میں پہنچے تو انہوں نے کرشنا مندر ہی کے قریب ایک درخت کے نیچے بوریا بچھایا تھا تاکہ سفر کی تکان مٹا سکیں۔ کرشنا مندر اب لاہور کی راوی روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مندر کے چاروں جانب عمارتیں بن چکی ہیں۔ مندر کی بیرونی دروازے تک پہنچنے کے لیے گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کرشنا مندر پر سارا سال بیوگی چھائی رہتی ہے۔ سفید ڈسٹمپر سے لپی دیواریں اور کلش اداس اداس سا نظر آتا ہے۔ جنم اشٹمی پر یہاں نرت نہیں ہوتا، دسہرے پر راون کا بت نہیں جلایا جاتا، دیوالی پر اس انداز میں دیے جلائے جاتے ہیں کہ وہ راوی روڈ سے گزرنے والوں کو نظر نہ آئیں، کیونکہ تخریب کاری خارج از امکان نہیں ہوتی۔ پھاگن میں جب ہولی آتی ہے تو مندر بے رنگ رہتا ہے، نہ پچکاریاں چلتی ہیں، نہ رنگ کے چھینٹوں سے چہروں پر گل افشانی ہوتی ہے، نہ رقص ہوتا ہے نہ موج مستی۔ بس انگلی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر گلال لگا دیا جاتا ہے اور دھیمی سی آواز میں ہولی ہے کہہ کر ہولی منائی جاتی ہے۔ آوازیں سہمی رہتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مندر میں ہولی کا تہوار منانے والے کسی ایسے عفریت سے خوفزدہ رہتے ہیں جو دیواروں کی دوسری جانب آگ اگلنے والے ڈریگن کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہو۔ ابتدا ہی سے میری پوسٹنگ لاہور ریڈیو اسٹیشن پر ہو گئی تھی۔ بہت جلد ہی ریڈیو کے افسران بالا کو معلوم ہو گیا کہ میرے قلب و ذہن میں کسی مذہب کے لیے بھی نفرت موجود نہیں ہے۔ تمام مذاہب کے تہواروں کی کوریج میری ذمہ داری بنا دی گئی۔ میں ہر سال میلاد پر ٹیپ ریکارڈر لے کر دلی دروازے کے قریب مسجد وزیر خاں پہنچ جاتا تھا، جہاں سے چوگال چوغیے باندھے، عربی لباس پہنے مقامی مولوی حضرات کندھوں پر روزہ رسول اٹھائے جلوس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی جلوس میں کندھوں پر مسجد نبوی کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جلوس مسجد وزیر خاں سے شروع ہو کر داتا دربار پر ختم ہوتا ہے۔ جلوس کے آگے نعت خوانوں کی ٹولیاں چلتی رہتی ہیں۔ ان میں اکثر فلمی گانوں کی دھنوں میں موزوں کی ہوئی نعتیں پڑی جاتی ہیں۔ ہر محرم کی 10ویں تاریخ کو میری ڈیوٹی چوک رنگ محل میں لگتی تھی، جہاں نماز عصر کے بعد اس قدر شدت سے زنجیر زنی ہوتی ہے کہ عزاداروں کی سفید شلواریں خون سے سرخ ہو جاتی ہیں اور سیاہ عمامے باندھے ہوئے ذاکر بلند آواز میں کہتے جاتے ہیں کہ مومنو آج اتنا خون بہاؤ کہ ہمارے دشمن اس میں ڈوب جائیں۔ گڈ فرائیڈے، ایسٹر اور کرسمس پر میں ٹیپ ریکارڈر اٹھائے گرجا گھروں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ ریگل سنیما کے پاس گرجا گھر میں کوائرز ریکارڈ کرنا مجھے دلچسپ کام لگتا تھا۔ ایک کوائر کی دھن اور بول مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ آیا یسوع یار ساڑھے پاس۔ سکھ یاتریوں کی ذمہ داری اگرچہ پنجابی دربار پروگرام کے پروڈیوسر کے ذمہ ہوتی تھی، لیکن واہگہ بارڈر پر سکھ یاتریوں کا استقبال کرنے میں ہی جایا کرتا تھا اور بادشاہی مسجد کے قریب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی پر شبد کیرتن میں ہی ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ ایک نوجوان سکھ لڑکی کی بلند آواز اور شبد مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ پرتم بگھوتی سمر کے، جنم اشٹمی، والمیکی جنم، دسہرا، دیوالی اور ہولی کے تہواروں پر میرے ہندو دوست مجھے کرشنا مندر میں بلایا کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سب مجھے بھول گئے۔ میرے گھٹنوں میں بھی اتنی قوت نہیں رہی کہ خود جا سکوں۔ اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں پڑھ لیتا ہوں۔ ہر خبر میں کسی حکومتی نمائندے کا بیان شامل ہوتا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، مکمل مذہبی آزادی۔ ریڈیو اسٹیشن پر میرے کمرے میں میرے پاس مسٹر اور مسز ملک بیٹھے تھے۔ میرے ہندو دوست آئے اور مجھے ہولی کا نیوتا دے کر فوراً ہی کسی ضروری کام کی وجہ سے چلے بھی گئے۔ ہم بھی جائیں گے،
मलिक ने मेज़ पर कोहनियाँ टिकाते हुए कहा। तुम तो जानते ही हो हम सेक्युलर हैं। मैंने मलिक और मिसेस मलिक को बताया कि वो जिस होली का तस्वुर करके कृष्णा मंदिर जाना चाहते हैं वो अब सिर्फ दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों ही में सरहद के उस पार दिखाई देती है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। कृष्णा मंदिर में ना रंग बरसते हैं न चुनरी वाली भीगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मलिक ने कहा। आइन में तो अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। यकीन नहीं आता तो चलकर देख लेना, मैंने कहा। मिस्टर एंड मिसेस मलिक बरसों पहले मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्तों में शामिल थे। 1971 की जंग के बाद शिकस्त खुर्दगी के एहसास ने पूरे मुल्क में मायूसी फैला दी थी। एक शाम यूनिवर्सिटी के 15-20 प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ने कैंटीन में बैठकर अहद किया कि हम में से कोई भी निज़ाम की खिदमत नहीं करेगा, क्योंकि निज़ाम ही मुल्क में सियासी अबतरी और मुआशरती बर्बादियों का बाइस बना हुआ है। हम राइज निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर नया निज़ाम लाएंगे। मलिक और मिसेस मलिक वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन ही ख़ानदानी निज़ाम से बगावत का ऐलान किया। दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे। दोनों ने वहीं शादी का फैसला किया और वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी भी कर ली। मिसेस मलिक अकेली थीं, न बहन न भाई। माँ बाप ने खामोशी इख्तियार कर ली। मलिक के ख़ानदान वालों ने उसे सब रिश्ते नातों से बेदखल कर दिया। निज़ाम को जड़ से उखाड़ने की हमारी ख्वाहिश खुद फरेबी में बदल गई और हम सब खुद अपनी ही जड़ों से उखड़ गए। यूनिवर्सिटी के वो तालिब इल्म और तालिबात जो हमारे पीछे सफ़े दोम के स्टूडेंट्स कहलाते थे, उन्होंने CSS का इम्तिहान दिया। पास होने वाले ब्यूरोक्रेट बनकर ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। अब वो हम पर हुक्म चलाते थे और अक्सर धमकियां भी देते थे। मलिक ने सरकारी मुलाजमत नहीं की थी, कोई कारोबार भी ना था, इसलिए उसरत ज़दा ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी खसलत में ज़बरदस्त तज़ाद पैदा हो चुका था। कभी वो मार्क्सिज्म पर लेक्चर देने लगता तो यूं महसूस होता कि पूरी दुनिया में इससे बढ़कर कार्ल मार्क्स को समझने वाला और कोई ना होगा। 3-4 दिन बाद ही वो मजहब इस्लाम और सोशलिज्म को जोड़कर कुरानी हवाला जात देने लगता था। एक दिन मुझसे कहने लगा, पैगंबर इस्लाम मेरे आइडियल हैं। पूछो क्यों? इसलिए कि इनकी सारी ज़िंदगी मर्दानगी की अलामत है। अगली शाम मिस्टर एंड मिसेस मलिक और मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन से एक तांगे पर बैठकर कृष्णा मंदिर पहुंचे। मंदिर के करीब में हमेशा महव सा हो जाया करता था। दूर दरिया के वस्त में बहती कश्ती पर से किसी मल्लाह का लोकगीत मंदिर तक आता महसूस होता था। इसी कैफियत में मैंने एक शेर भी कहा था, ये बात याद रखना रहता था तेरा खालिद, ईरावती के तुट पर लाहू के इस नगर में। हमेशा की तरह हिंदू दोस्त पुरतपाक अंदाज में मिले। मिस्टर एंड मिसेस मलिक को देखकर भी बहुत खुश हुए। मंदिर में होली का त्यौहार मनाने वालों की तादाद 20 से ज़्यादा न थी। इनमें बच्चे भी थे। फिर 3-4 सिख दोस्त भी आ गए। सबके हाथों पर गुलाल लगाया गया। फिर सब एक अंदरूनी कमरे में चले गए। गणेश देवता की स्तुति गाने के बाद भजन शुरू हुए। कृष्णा मंदिर में एक मूर्ति भी नहीं है, सिर्फ फ्रेम की हुई देवी देवताओं की तस्वीर हैं जिन्हें मुसव्विरों ने बड़ी श्रद्धा से बनाया होगा। ये तस्वीर अंदरूनी कमरे में हैं, जहां मूर्तियां न होने की वजह से आरती के थाल भी नजर नहीं आते। बस एक घंटी है जो अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर लटकी रहती है। कमरे में अगरबत्तियां नहीं जलाई जाती। इन्हीं तस्वीर में एक तस्वीर पर मेरी नज़र ठहर सी गई। इस तस्वीर में होलिका नन्हे से प्रहलाद को गोदी में उठाए चिता पर बैठी दिखाई दी है। भजनों के बाद छोटी छोटी थालियों में प्रसाद बांटा गया। यह प्रसाद सूजी का हलवा था। हर साल की तरह प्रसाद बहुत लजीज था। मैं पूरी थाली चट कर गया। मिस्टर एंड मिसेस मलिक के सामने थालियां बड़ी थीं और वो दोनों परेशान से नजर आ रहे थे। मेरे हिंदू दोस्त ने मामला फहमी से मलिक और मिसेस मलिक का प्रसाद एक पॉलीथिन के लिफाफे में डाल दिया। शायद वो यही सोच रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस मलिक मंदिर में बैठकर प्रसाद खाने से झिझक रहे हैं। वापसी पर जब तांगा शाह आलमी दरवाजे के पास पहुंचा तो मलिक ने बीवी के हाथ से प्रसाद का लिफाफा लिया, इधर उधर देखा और तांगे के घूमते चिरचिराते पहिए की सिमत हाथ ले जाकर प्रसाद सड़क पर फेंक दिया। मलिक के चेहरे पर नागवारी सी थी। स्टेशन पर जहां तांगा रुका वहां एक नलका भी था। मलिक ने नलके पर 4-5 मरतबा हाथ धोए। बीवी को भी हुक्म दिया कि 4-5 बार हाथ धो ले। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें तो हाथ धोने की जरूरत नहीं। मलिक के लहजे में तंज था। तुम तो मुझे पैदाइशी हिंदू लगते हो। कितने मजे से हलवे की पूरी थाली खा गए थे। तुम तो, मैंने कहा, तुम तो खुद को हर किस्म की नफरत से बुलंद कहा करते थे।
तुम तो खुद को सेक्युलर होना और बात है, मलिक ने मेरी बात काटते हुए कहा, और हिंदुओं के हाथ का हलवा खाना और बात है। तुम नहीं जानते, तुम्हारा मैदा पलीत हो चुका है। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों के घरों में आबे ज़मज़म मौजूद हो तो मंगवाकर एक घूंट पी लेना, ना मिले तो सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़कर पानी के गिलास पर फूंक कर एक ही सांस में पानी पी लेना, पाक साफ हो जाओगे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इरावती के धारे कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों से टकराकर पीछे हटे हैं तो हटते ही चले गए हैं, फिर वो सिकुड़कर नाली बन गए हैं, फिर नाली भी सूख गई है और दरिया में फैली हुई खुश्क रेत के सिवा कुछ नहीं रहा। इस रात में देर तक सो न सका। बचपन से जवानी तक स्कूलों कॉलेजों में यही बताया जाता रहा था कि हिंदू बहुत तंग नज़र और मुतासब होते हैं। अगर इनके खाने के बर्तन को कोई मुसलमान छू ले तो वो बर्तन ही फेंक देते हैं। हिंदू औरतें अपनी रसोई में गंगा जल छिड़कती रहती हैं, अपने अलावा सबको नेजिस कहती हैं। हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान बहुत फिराक नज़र और गैर मुतासब होते हैं। मुसलमान बहुत खुले दिल के होते हैं, सबको गले से लगाते हैं और किसी से नफरत नहीं करते। हकीकत क्या है? हकीकत की सम देखना भी किसी को गवारा नहीं। मैंने सोचा ये एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है कि इस दुनिया में हर मजहब किसी न किसी सूरत में नफरत ज़रूर सिखाता है, क्योंकि हर मजहब खौफ और खुद गर्जी की बुनियादों पर कायम है। और जहाँ खौफ होगा वहाँ तासुब ज़रूर होगा, जहाँ खुद गर्जी होगी वहाँ नफरत ज़रूर होगी। मलिक के मुनाफिकाना रवैये से मैं दिल बर्दाश्ता था। अगर खुद को रोशन ख्याल कहने वाले नाम नहाद प्रोग्रेसिव लोगों का ये हाल है तो इंतहा पसंद मौलवियों, पीरों और इनके ज़ेरे असर लाखों लोगों की नफरत का क्या आलम होगा। अगले रोज़ मैं 7 मिनट दौरानिए की होली डे पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि मेरे हिंदू दोस्त स्टूडियो ही में आ गए। कल प्रसाद का हलवा बहुत लजीज था। उन्हें देखते ही मैंने बेसाख्ता कहा, जी चाहता था एक थाली और मांग लूं। मेरे हिंदू दोस्त ने कहकहा लगाया, लजीज क्यों ना हो। उन्होंने चमकती हुई आंखों से मुझे देखा। हम हर साल अमृतसरियों की दुकान से खसूसी तौर पर बनवाते हैं। अमृतसरियों की दुकान लाहौर शहर में अमृतसर के मशहूर मुसलमान हलवाइयों की दुकान है, जो 1947 में सरहद के इस पार आ गए थे। मेरे तसव्वुर में इरावती की सूखी रेत फिर से नम होना शुरू हो गई, जैसे रेत से कोई चश्मा फूट रहा हो।